Hello guys, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Guys, today we are going to review, we are going to analyze, we are going to summarize a very famous book by a very famous Indian, and it is known as Wings of Fire, which has been written by Dr. APJ Abdul Kalam along with Dr. Arun Tiwari. It has been written by Dr. APJ Abdul Kalam and Arun Tiwari. In this book, Abdul Kalam has written about his life, how he became the missile man of India from a small town boy in Rameswaram, Tamil Nadu, and what kind of obstacles, what kind of sufferings, what kinds of mishappenings, what kind of outfeelings, what kind of sufferings he had to go through before he reached to that place. He never married in all his life, and he became an example of strength, an example of courage, an example of motivation for each and every student. And let me tell you frankly that Dr. Kalam was not at all interested in writing about his life, but it was Arun Tiwari ji who asked him, who pressurized him to uh, write down his memories, to write down whatever he recollects from his memories, so that when in the upcoming years somebody like him tries to do something good for Indian country, tries to face difficulties, try to feel that if he belongs to a small city, if he comes from a small town, he cannot achieve greatness, then he might read about you, and he might get motivation, and he might get success in life. And that's why Dr. Abdul Kalam started thinking of or thought of writing his autobiography, and that's why we are here with this book, Wings of Fire, by Dr. Abdul Kalam, by Dr. Abul Pakir, Jainul Abdul Kalam, and Arun Tiwari ji. So we are going to analyze this book. Let me frankly tell you that I come from a literature background. I don't have any much knowledge in scientific or in aerospace engineering. But this books, the about 80% of this book deals with the aerospace engineering and scientific research. So I might not be able to tell you. I might not be able to give you a better detail of this book in detail, but still I can give you some surface knowledge of this book about the early life of Dr. Abdul Kalam, which is very important for our young students of CBSE or of any board they are studying. They must have issued at least one chapter of this book. That is the first chapter, which deals with the life of the Dr. Kalam. Dr. Kalam was born in a small town. Let me tell you that Dr. Kalam was born in a small town, Rameswaram, in Tamil Nadu. तमिलनाडु में पैदा हुए थे डॉक्टर कलाम जी। छोटे से गांव से थे। उनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन था, ठीक है। और वो एक सिंपल से बंदे थे। उनकी बचपन ना तो बहुत गरीबी में गुजरा था। उनका एक बड़ा हाउस था, पक्का हाउस था, और उनका ऐसा नहीं था कि कच्चा हाउस था, पक्का हाउस था उनका। और उसके फादर हालांकि लग्जरीज में बिलीव नहीं करते थे, ही डिडंट बिलीव इन लग्जरीज, बट जो भी जरूरत की चीजें थी वो सारी प्रोवाइडेड थी उनको। उनके बहुत सारे भाई बहन थे और उन्हीं में से एक थे छोटे से कद के, ज्यादा हैंडसम नहीं थे, सिंपल से थे। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कलाम जी को। तो इस तरीके के थे। उनकी माँ थी आशी अम्मा, जिन्होंने बहुत हेल्प की थी उनके फादर की कोई भी डिसीजन लेने का फैमिली में, ठीक है। उनके फादर इमाम भी थे, जो रामेश्वर में मॉस्क थी वहां पे इमाम भी थे उनके फादर। और यह रामेश्वरम का शिवा का मंदिर था, लॉर्ड शिवा का मंदिर था। वहां के जो मेन हेड प्रीस्ट थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी, वो उनके फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। और उनका जो बेटा था वो अब्दुल कलाम जी का बहुत अच्छा दोस्त था। अब्दुल कलाम जी के एक और अच्छे दोस्त थे, वो थे जैनुलाब्दीन, आई थिंक, है ना, सॉरी, जलालुद्दीन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो उनसे 15 साल बड़े थे हालांकि, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। और उनकी जितनी भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो भी उनकी लाइफ थी, जो भी उनके स्पिरिचुअल विचार थे, वो जलालुद्दीन के करके ही थे। जलालुद्दीन से उनकी स्पिरिचुअल रिगार्डिंग अक्सर बातचीत होती रहती थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो भगवान में विश्वास करते थे,
ठीक है। और वो एथिस्ट थे, वो भगवान को मानते थे, जा अल्लाह को, जा खुदा को मानते थे वो, क्योंकि वो मंदिर में भी जाते थे और मॉस्क में तो खैर वो अपने फादर के साथ डेली जाते ही थे, रोज ही जाते थे, है ना। उनका एक कजन था जिसका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन ने उनको उसकी लाइफ की आई थिंक पहली जॉब दिलाई थी, जब वो न्यूज़पेपर बांटने लगे थे। शमसुद्दीन को एक बंदे की जरूरत थी जो उसके साथ न्यूज़पेपर कलेक्ट कर सके, तो अब्दुल कलाम जी ने उसकी हेल्प करी थी, और वो पहली अर्निंग थी अब्दुल कलाम जी की लाइफ की, ठीक है। उसके बाद उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा है उनकी बचपन का। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके स्कूल में एक टीचर आया था, देयर वाज ए टीचर इन हिज स्कूल। उसने क्या किया, लक्ष्मण शास्त्री का बेटा और अब्दुल कलाम जी एक साथ बैठते थे फर्स्ट बेंच पे, और ये उसको पसंद नहीं आया, ये उसके पेट में बात पची नहीं कि एक पंडित के बेटे के साथ एक मुस्लिम का बेटा क्यों बैठा हुआ है ना, कास्ट सिस्टम था। तो उसने अब्दुल कलाम जी को उठाया और पीछे बिठा दिया। ये बात उन्होंने जाके अपने फादर को बताई, और फिर लक्ष्मण शास्त्री जी ने, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी ने उस टीचर को घर पे बुलाया और उसे बताया कि उसे ऐसी बातें स्कूल में बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस उसे नहीं सिखानी चाहिए, ये भेदभाव की बातें बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो टीचर जाहिर है कि वहां पे नहीं रह पाया था, ज्यादातर शर्म के मारे उसे छोड़ना पड़ा था, वो कहीं और चला गया था ट्रांसलेट होके, ठीक है। और भी कई कुछ बंदे थे उनके जिंदगी के जो बचपन में, जिन्होंने उसकी अर्ली लाइफ में बहुत सहायता की थी, ठीक है। अर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा सहायता की थी उन्होंने। इस बुक को 6-7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट उनका लाइफ से रिलेटेड किया था, उनकी फर्स्ट पार्ट उनकी अर्ली लाइफ से रिलेटेड करता था। वो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में पढ़े थे रामेश्वरम के, और उनकी अपनी हायर एजुकेशन स्क्वाड हाई स्कूल से करी थी। उसके बाद वो MIT में गए थे, यहाँ पे उसने फिजिक्स की डिग्री ली, मतलब एक लोकल कॉलेज में गए थे वो, वहाँ पे उसने फिजिक्स की डिग्री ली BSc में, और बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं ये उनके लिए नहीं है, फिजिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं था। फिर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मद्रास यूनिवर्सिटी से। मद्रास यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ने गए थे तो उनके पास ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे वो कि वो वहाँ का खर्चा उठा सके। फिर उनकी जो बड़ी बहन थी जहारा था, जिनका शायद नाम जुहारा, उन्होंने अपने गहने गिरवी रख के उसकी फीस भरी थी, ठीक है। उसकी फीस भरी थी और उसको पढ़ाया था। तो उनकी जो, जब उनकी बहन ने इतना विश्वास दिखाया था उसके ऊपर, तो मतलब वो आंसू आ गए थे उनकी आंखों में, और वो उन्हें लगा था कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो चले गए थे आई थिंक किसी एज ए ट्रेनर काम करने चले गए थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, पेट्रोलियम एरोनॉटिक्स में, कुछ ऐसे करके कंपनी थी, HAL कंपनी में वो गए थे। और वहां पे उन्होंने एज ए ट्रेनी काम किया। बाद में उन्हें जॉब मिल जाती है DTP में। हालांकि एयरफोर्स के लिए भी वो जाना चाहते थे, जो उनका मेन सपना था, मेन ख्वाब था उनका एयरफोर्स में जाने का, वहां पे भी वो जाना चाहते थे, बट नहीं जा पाए, वहां पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये उनका पहला फेलियर था। उन्हें पता चल गया था कि लाइफ में हर टाइम सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में कुछ ही दिनों बाद GTP का लेटर आ गया था दिल्ली से, फिर उन्होंने दिल्ली में जॉब की। उसके बाद उन्होंने इसरो में भी काम किया, DRDO में भी काम किया। उन्होंने 5 मिसाइलें बनाई इंडिया की, जिनके नाम आपको दिखे जाएंगे, ठीक है, जो अग्नि, त्रिशूल, ऐसे करके 5 उन्होंने मिसाइलें बनाई, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। बाद में उन्होंने DRDO में काम किया, वहीं पे उन्होंने मिसाइल पे काम किया जो काफी समय से उछल रहा था, ठीक है। इसी बीच उन्हें US जाने का भी मौका मिला। US में उन्होंने काफी कुछ नई चीजें सीखी, और मतलब आके उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया आके यहाँ पे अपने एरिया में, और बहुत ही ज्यादा ग्रो किया उन्होंने। यंग साइंटिस्ट को बहुत हेल्पफुल थे वो। इंदिरा गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे। एक उनके प्रोफेसर साराभाई थे, जब वो मिसाइल की काम कर रहे थे तो उन्होंने प्रोफेसर साराभाई से भी वो बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे उनकी लाइफ से भी वो। तो उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे और कई तरह के पर्सन आए जिनकी लाइफ से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इसके बाद उनकी लाइफ में कुछ समय बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है, जो उन्हें बहुत तोड़ती है। 1976 में शायद फादर की डेथ हो जाती है। कुछ समय बाद उनकी मदर की डेथ भी हो जाती है, जो भी बीच में प्रोफेसर साराभाई भी जी जा चुके थे, वो भी
स्वर्ग से जा चुके थे, ठीक है। लेकिन जब वो मिसाइल मैन बने थे, जब उन्हें ऑनर किया गया था पद्म विभूषण से, जब उन्हें सम्मानित किया गया था, तब वो उनके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके बाद वो सेलिब्रेट कर सके। जिन्होंने इस सक्सेस में वहां तक पहुंचने के लिए उनकी हेल्प करी थी, वो एक भी इंसान नहीं था। ना उनके फादर थे, ना उनके दोस्त जलालुद्दीन थे, ना उनकी मदर थी आशियामा थी, ना उनके गाइड प्रोफेसर सारा भाई थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनका कोई भी वो साथी नहीं था जब उन्हें इतना सारा सम्मान मिला। तो ऐसे ही उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे कुछ अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 टाइम्स प्रेसिडेंट भी रहे वो इंडिया के, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर दिए यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें PhD की डिग्री भी दी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी रिकॉग्निशन हासिल की बाद में जब वो मिसाइल मैन बने थे। इसी तरीके से जब उन्हें इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिली थी तो कुछ उनके कलीग उनसे निराश भी हो गए थे, कुछ उनकी खुशी में बहुत खुश थे। लेकिन ऐसा ही होता है, जो आदमी लीड करता है उसी को रिकॉग्निशन मिलती है, और हार का सामना भी उसे करना पड़ता है। जब मिसाइलें लगातार फेल हो रही थी तो जो कार्टून बनाए जा रहे थे तो उन्हीं पे बनाए जा रहे थे, जो उन्हें उनका मजाक उड़ाया जा रहा था तो उन्हीं का उड़ाया जा रहा था। ऑब्वियसली जो आपको लीड करता है उसी का जिम्मेवारी होती है आपको आगे तक लेके जाने की। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया, अपनी टीम को जिताया, और फाइनली उन्होंने इंडिया को साइंस में वो मुकाम हासिल करवाया जो वो चाहते थे। अगर आप उनकी लाइफ के बारे में डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। आई थिंक मैंने सरफेस लेवल पे तो सारे टॉपिक टच कर दिए हैं उनकी लाइफ से, और अगर आप डीप लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक खरीद सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही एंथुसियास्टिक बुक है। और MS मकुंडा, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, IIS बेंगलोर, इन रेजोनेंस सितंबर 1999 में इन्होंने कहा भी था कि देयर इज समथिंग दैट एवरीबॉडी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बुक, द बुक इज वर्थी ऑफ बीइंग रेड बाय एवरी इंडियन। मतलब इस बुक में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो कोई हर इंडियन इस बुक से, इंडियन क्या, कोई भी किसी भी देश का कोई भी इंसान इस बुक से सीख सकता है। लेकिन हर इंडियन को जिंदगी में एक बार जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लाइफ में इंस्पिरेशन चाहते हैं, लाइफ में कहीं आपको लगता है कि आप स्मॉल टाउन से हैं तो आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, या आपके लिए सक्सेस है ही नहीं है ना, आपके पास पैसे की कमी है या कुछ और कमी है जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, ठीक है। और तब आपको इनकी बुक पढ़नी चाहिए, आपके लिए बहुत काम करेगी ये बुक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करके 32 ईयर्स में फर्स्ट जॉब की थी। इनकी फर्स्ट जॉब इनकी 32 ईयर्स में थी। तो जो जॉबलेस है, जिन्हें लगता है कि जॉब ही नहीं मिलेगी जिंदगी में कभी भी, नहीं, 32 ईयर्स में अब्दुल कलाम जी ने अपनी पहली जॉब की थी, फुल कमाई जो मिली थी उन्हें, ठीक है। 250 रुपए की जॉब थी वो उनकी। तो वो देख लीजिए बाद में क्या मुकाम हासिल किया उन्होंने। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना ये आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको उनकी बुक के बारे में जान के बहुत ही पता चला होगा। अगर आप उनकी बुक खरीदना जा रहे हैं तो आई थिंक आपको ये लेक्चर देख लेना चाहिए। अगर बुक नहीं भी खरीद सकते तो भी लेक्चर देख लीजिए, तभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस लेक्चर से, ठीक है। और अगर आप डीप में स्टडी करना चाहते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप एरोस्पेस बैकग्राउंड के हैं, तो फिर आप उनकी बुक खरीदिए, आपको जरूर बहुत कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।